اور وہ سیگمنٹ کیا ہے جوگن ذرا بتائیے آپ. میں بتا دیتا ہوں, چلیں جوگن آپ سوچ میں نہ پڑے. ڈیبیٹنگ کمپٹیشن ہے. ڈیبیٹس ایکچولی انشال یہاں پہ آئی تھی اور انشال نے ڈیبیٹ کمپٹیشن پیش کیا تھا. مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہاں پہ ہیں. آئیے ادھر آئیے. ارے وہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں آپ انشال صاحبہ؟ اور ہماری لاسٹ ایئر کی ونر ہیں یہ. بالکل جی, انشال صاحبہ کے لیے بہت سی تالیاں. اور انشال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, جہاں پہ بہت جگہوں پہ بہت سی خواتین جو بولتی ہیں اور ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے, لیکن پی ٹی وی ایک ایسا چینل ہے اور رمضان پاکستان ایک ایسا شو ہے جو ہماری آج کے بچے بچیوں کی آواز ہے, ہماری یوتھ کی آواز ہے, اور اس کی مثال ہے انشال. جی انشال. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت زیادہ مبارکباد. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ منعقد کیا جانے والا کیوں موبائل کا اسپیچ سیگمنٹ آج اس کا دوسرا مرحلہ ہے, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انشال جاوید. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے نوجوانوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم کو اویل کریں, یہاں پر آئیں اور اپنے احساسات, اپنے خیالات اور اپنے الفاظ سے اس پوری دنیا کو بتائیں کہ پاکستان میں بسنے والے نوجوان بہت عزم و استقلال اور اتحاد اور تنظیم کا سبق رکھتے ہیں, اور پوری دنیا کو بتائیں کہ رمضان المبارک کی برکتوں سے سبق سیکھ کر وہ پاکستان کے حق کے لیے کیا کوششیں کر سکتے ہیں. تو آج ہمارے پاس جو پارٹیسپینٹس موجود ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور اپنی تقریریں کریں گے, اور پھر اس کے لیے میں اسپیچ سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے مدعو کرنا چاہوں گی ہمارے چیف جج جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سر آغا شیرازی, جو کہ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں سر آغا شیرازی یہاں پر موجود ہیں, جو کہ نیشنل چیمپئن ہیں, نریٹر ہیں, اینکر ہیں, اور کیا کیا کچھ نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت سارے مقامات پر پاکستان کا نام بلند کیا ہے اور فن مقرری میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. تو پھر آج جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ روشنیوں, برکتوں اور نیکیوں کا مہینہ ہے, تو پھر آج اندھیروں کی نہیں اجالوں کی بات ہوگی, مایوسی کی نہیں امیدوں کی بات ہوگی, اور عنوان بھی ہمارا یہی ہے کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. تو پہلے مقرر کو میں بلانا چاہتی ہوں جن کا تعلق ہے ہمدرد یونیورسٹی سے, اقبال رضوی. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. اور انشال آغا بھائی کے ساتھ ساتھ انشال ہمارے یہاں پہ آغا بھائی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جمیل راٹھور بھی ہیں, ہم ان سے ان کی رائے بھی لیں گے, اور اب آپ کی رائے بھی شامل رہے گی, ہم سب کی رائے شامل. کیوں آغا بھائی, صحیح ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ ہماری یہ جو ڈاکٹر انشال جاوید ہے, ان کو ڈاکٹر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بالکل فائنل ایئر پہ ہیں, پھر اس کے بعد آپ ڈاکٹر ہوں گی کمپلیٹ. تو ڈاکٹر انشال جاوید پاکستان ٹیلی ویژن کے ہی ایک منعقدہ پروگرام میں خود ونر رہی ہیں, اور بہت سارے مقابلوں میں جو ہے وہ ججمنٹ کے بھی فرائض انجام دیتی ہے. میں چاہوں گا کہ یہ بھی ججمنٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اقبال رضوی, آپ کے پاس 3 منٹ کا دورانیہ ہے, اور آپ اپنے ڈیلیوری, اپنے کانٹینٹ, اپنی پروننسیشن اور اپنی ریلیونسی پر جج کیے جائیں گے. ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. صدر علی وقار, ندائے حق زہر کا پیالہ پی کر بھی شہد کی طرح میٹھا بولتی ہے. اس میں وہ شان مسیحائی پیدا ہوتی ہے کہ مردے بول اٹھتے ہیں اور سردلاشوں میں زندگی کی حرارت آ جاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو کبھی سقراط بنی تو کبھی بقرات کے سلیب پر اس کا نام عیسیٰ رکھا گیا اور وقت فرعون میں موسیٰ ٹھہری. یہ آواز کوہ صفا کی چوٹیوں سے بلند ہوئی تو اس میں اتنا کیف و سرور تھا کہ تپتی ریت دہکتے انگاروں پر گھسیٹے جانے والے غلاموں نے ننگی پیٹ پگھلتی چربی سے تپتی ریت پر یہ تحریر کر دیا کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. صدر علی وقار, رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حاصل ہونے والے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کروں تو یہ پاکستان جو ہمارے عظیم رہنماؤں سر سید احمد خان, علامہ اقبال, مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی اور قائد اعظم کی بدولت حاصل ہوا, تو انہوں نے بھی اس بات کا عزم کیا تھا کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہوگا. کہ پھر آج یہی پاکستان روشنی کی طرف گامزن, روشنیوں کی طرف اجالا کرتا ہوا سفر کر رہا ہے. کہ صدر ذیوقار کہیں تو مسرت مصباح کھوئے ہوئے چہروں کی شناخت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, تو کہیں انصار برنی, سارم برنی, عبدالستار عیدی, رمضان چھیپا جیسے عظیم لوگ انسانیت کے علم بردار, غریبوں, ناداروں, یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنتے گویا دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. صدر علی وقار, پھر 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 کا سیلاب, کراچی سے خیبر
तमाम पाकिस्तानी शहरी एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे की मदद करते, गोया दुनिया को ये पैगाम देते रहे कि देखो हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। सदर आली वकार, फिर ऐसे में सानहे पेशावर की बात करूं तो 16 दिसंबर 2014 को जब सानहे पेशावर में मासूम फूलों को खून में नहला दिया गया, इल्म की शम्मा रोशन करने वाली प्रिंसिपल ताहिरा काजी की जिंदगी का चिराग भी गुल गया, मगर अगले ही रोज उसी स्कूल में मासूम बच्चे तालिबे इल्म एक नए अज़्म, जोश, जज्बे के साथ अपने हाथ में कलम और किताब थामे इस अज़्म के साथ तालीम हासिल करते हुए दिखाई दिए कि माँ मुझे दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है, तो गोया दुश्मन को ललकारते हुए दिखाई दिए कि देखो हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। सदर आली वकार, फिर ऐसे में मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ निगाह दौड़ाता हूँ तो मुझे कहीं तो ये नौजवान तालीम के मैदान में अरफा करीम नवाज़ी, सितारा बुरूज अकबर की सूरत में पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं मुझे यही नौजवान रमजान मुबारक के इसी बाबरकत महीने में तपती और कड़कती धूप में खड़े होकर रोजगारों के लिए अफ्तारी का इंतजाम करते हुए उन्हें ठंडा पानी फराहम करते हुए दिखाई देते हैं। फिर यही नौजवान हीट स्ट्रोक जैसे कैंप्स कायम करते हुए दिखाई देते हैं। फिर यही नौजवान फिक्सिट जैसी मुहिम चलाते, गटर के ढक्कन लगाते, कराची की सड़कों से कचरा उठाते हुए दिखाई देते हैं। तो हाँ, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। सदर आली वकार, फिर ऐसे में इल्म की शम्मा रोशन करने वाली मलाला यूसुफजई जब नोबेल इनाम याफ्ता करार पाती है तो नोबेल इनाम हासिल करते हुए यही पैगाम देती है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। बहुत शुक्रिया। बात है इकबाल रिजवी आपकी। इकबाल रिजवी हमारे साथ थे और कहना चाह रहे थे कि जब जज्बा इब्राहिमी है जिंदा तो फिर शोलों से क्या डरना, अगर रास्ता है यूसुफ का तो फिर जेलों से क्या डरना, अगर वारिस हो मरियम के तो इल्जामों से क्या डरना, कि तेरे हाथ में इस्तिकामत का वो अलम है जो कभी ताइफ में लहराया तो हर सू रोशनी फैली, कभी बदरो ओहद में जिंदगी की खुशबुएं महकी, अगरचे आज भी चारों तरफ तारीख रातें हैं, अगरचे आज भी शैतान की वो पहली सी घाटे हैं, मगर इस परचमे इस्लाम को ऊंचा ही रखना है कि जिससे रोशनी होगी, कि जिससे वो सहर होगी, सुकून से बेकसों की जिंदगी जिसमें बसर होगी, सुकून से बेकसों की जिंदगी से बसर होगी। हमारे साथ हमारी अगली मुकर्ररा मौजूद हैं ज्वाला राठी, जिनका ताल्लुक है एलीड स्कूल से। मैं चाहती हूं कि वो स्टेज पर आए और हमें बताएं कि हमारे बाद उजाला अंधेरा नहीं उजाला है। ज्वाला राठी, आप सबकी भरपूर तालियों में। सदर आली वकार, दीवारें फलांग कर स्कूल में घुस जाने वाला वो ये समझता है कि वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा। अली वकार, गोलियों की बौछार से बिलकते हुए जिस्मों को देख मुस्कुराने वाला वो ये समझता है कि वो अपने गलीज इरादों में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जनाबे वाला, खूने जुल्म ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर अब और नहीं रहने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर एक नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। और अली वकार, इन्हीं तारीकियों का जिगर चीरती उजाले की सूरत में ताहिरा काजी उन बच्चों की मुहाफिज बनकर दुश्मन को ये ललकारती है, ए दरिंदों गोली इन बच्चों पर क्या चलाते हो, अगर गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। और मरते दम ये ऐलान करती हैं कि मेरे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। जनाबे वाला, ये उजाला देखना है तो जाइए एपीएस के उस स्कूल में उन मासूम बच्चों की आंखों में देखिए कि जिस जगह पर उनके भाइयों को गोलियों से छलनी छलनी कर कर मार दिया गया था, उसी जगह पर तालीम हासिल करते हुए वो ये ऐलान करते हैं, ए सितमगर ये गर्दिश दौरा, मेरी ललकार की आवाज सुन, मेरा कलम तोड़ोगे, मेरे अल्फाज बोलेंगे, मेरा बाजू काटोगे, मेरा आलम बोलेगा, मुझे मार भी दोगे, मेरा लहू बोलेगा, मेरा मान तोड़ोगे, मेरे ख्वाब बोलेंगे।
सदर अली वकार, जहां तारीकियों के बादल ढाए हों, जहां सियासतदान सबका सब कुछ खा जाने पर मबनी हो जाएं, उसी जगह पर एक उजाला अब्दुल सत्तार ईदी की सूरत में अपना सब कुछ इंसानियत के नाम लुटा देता है और मरने के बाद अपनी आंखों का नूर भी इंसानियत के लिए छोड़ जाता है और ये ऐलान करता है कि मेरे बाद अंधेरा नहीं, उजाला है। अली वकार, ये उजाला देखना है तो जाइए कराची की उन सड़कों पर, देखिए कि जहां बिजली, पानी ना गैस है, तपती धूप में, रोजे की हालत में वो नहत्ते नौजवान मुस्तहक लोगों के लिए दस्तरख्वान बिछाए बैठे हैं। और अली वकार, जरा उन दस्तरख्वानों पर भी गौर कीजिएगा, वहां आपको कोई सिंधी, बलूची, पंजाबी, कोई सुन्नी या शिया नहीं, बल्कि सब इंसान नजर आएंगे। तो जनाबे वाला, मैं ये क्यों ना कहूँ, हमारे बाद अंधेरा नहीं, उजाला है। अली वकार, ये उजाला कभी आरफा करीम, अली मोइन, नवाजिश, हारून, तारिक, बाबर, इकबाल, साद अली की सूरत में, ये उजाला कभी मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला की सूरत में, तो कभी राशिद मिनाज, एम आलम की सूरत में नजर आता है। सदर अली वकार, ये उजाला फिर ये ऐलान कर जाता है, ए अज़ीज़े वक्त, तेरा तो एक दिन था, अपना जमाना भी निराला है, मेरे बाद अंधेरा नहीं, यकीनन उजाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है ज्वाला आपकी। हमारी तीसरी मुकर्ररा आ खान हायर सेकेंडरी स्कूल से ताल्लुक रखती हैं और उनका नाम है फरीहा खान। आप सबकी भरपूर तालियों में। हमारे बाद अंधेरा नहीं, उजाला है। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज झलकने वाली है सब दुनिया के दरबारों में। सदर अली वकार, मेरे मौजू में मौजूद अल्फाज से मुराद अल्फाज अंधेरे और उजाले से मुराद दीवार में लगी बत्तियों का नहीं, बल्कि ये तो वो अंधेरा है जो इंसानी फितरत के बाइस दिलों में पाया जाता है और उजाला करने के लिए आफाक की जानिब से आने वाली किरणों की नहीं, बल्कि अपने जमीर को जगाने की जरूरत है। सदर अली वकार, ये वही अंधेरा है जो एक मामूली दरवेश को 40 बरस तक गार में तसव्वुफ करने पर मजबूर कर देता है। हाँ, वो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो जमाने जाहिलियत में उजाले की वजह बने और आज 1400 साल बाद भी हम गवाही देते हैं कि उनके बाद अंधेरा नहीं, उजाला है। सदर अली वकार, अंधेरा तो वो है जो अपने वजूद में लपेटे आज की नौजवान नस्ल को घसीटे चला जा रहा है, मगर उसमें से अचानक अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है। जरा गौर करने पर मालूम होता है कि रमजानुल मुबारक के महीने में अब भी कोई नौजवान बाकी है जो फेसबुक और सोशल मीडिया का पल्लू छोड़कर नमाजे तरावी की अमामत करता है और नकारा बुलंद होता है, हमारे बाद अंधेरा नहीं, उजाला है। सदर अली वकार, तारीख गवाही देती है कि एपीएस के उन नन्हे फरिश्तों का जिस्म जलाने जब वो जल्लाद आए थे तो उनकी सिसकती हिचकियों से निकलती सदाएं आने वाले उजाले की पेशन गोया करती थीं कि जैसे वो कहते हो, अरे मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूं, तू गुरूब होने वाला। सदर अली वकार, हमारे बाद उजाला होगा कि जब इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरजमीन पर मजीद अली मोइन नवाजिश सामने आएंगे, आरिफा करीम के मुमासिल अपनी अक्लो सलाहियत का मुजाहिरा करेंगे, एतजाज की मानिंद अपनी जानों को हक की राह पर कुर्बान कर देंगे और शमीम अख्तर की तरह एक औरत होने के बावजूद ट्रक चलाकर अपनी रोजी कमाए तो वो उजाला नहीं तो फिर क्या है। और उसी उजाले की जीती जागती मिसाल यहाँ बैठी मुनीबा मजारी है जो लाखों जिंदगियों में अपने यकीने मुहकम के साथ जुगनू की मानिंद नजर आती है। सदर अली वकार, उजाला तो मेरे सामने बैठा यहाँ हर एक शख्स है जो अंधेरे को उसकी जड़ों से उखाड़ देगा और मेरे साथ बोलेगा, मैं भी काइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की रात को, जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्या बात है फरीहा। फरीहा के जज्बे चीख कर कह रहे थे कि हमारी असास, हमारे लबों पे चमकने वाली वो प्यास है जो दरिया के गुरूर को पाश करते।
हमारे दिल के दाग वो चिराग हैं कि जिससे तूफानी हवाएं भी शिकस्त खा जाएं। अरे हम अपने सीने की आग से ऐसे कोहराम मचाएंगे कि हमारे खून चूसने वाले तुफैलिए अपने बिस्तरों में कांप जाएंगे। हम गिरा ख्वाब लोग जिस रोज संभलने लग जाएंगे, उस रोज हिमालय के चश्मे उबलने लग जाएंगे, और हम जहां रुकेंगे सिल चीर देंगे। हम अपने हौसलों से पहाड़ों के दिल चीर देंगे, और गमजदों को रुलाने वालों और माओं को आग लगाने वालों को ये बताएंगे कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। मुझे मिला ना सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त एक मुकाबला आपने पेश किया और बहुत दखल दर माकूल। जी प्लीज आपके पास आप मेरे हमरा मौजूद हैं जी। आप खुद बहुत अच्छा बोलते हैं, टेलीविजन पे काम कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली यहाँ पर जब बात करते हैं तो आपके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, आपने भी राय देनी है कि कैसा बोला जाए। थैंक यू वेरी मच आगा भाई, थैंक यू। आई थिंक तजर्बा जो है वो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है और आई एम रियली ग्रेटफुल। लेकिन आप प्लीज फाइनली जज तो आप करेंगे और साथ राठौर भाई भी शामिल होंगे और मैं इंशाल भी साथ शामिल हैं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सबसे बेस्ट, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज हम लोग जब स्टेज पे खड़े होते हैं एक बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके पास बोलने के लिए कुछ कम हो या ज्यादा, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि लोगों तक पैगाम पहुंच जाए। ठीक है सर, आप बोलिए जी। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल 3 बच्चे हमारे पास आए सामने इंशाल, और अगरचे आपने भी दरमियान में तकरीर का पूरा रंग जमाए रखा दौरान निजामत भी, और एक बच्चा इकबाल रिजवी हमारे पास आया सबसे पहले, जिसने लफ्ज सलीब को दुरुस्त अदा नहीं किया, और एक जगह पे जो है वो गुल कहा गया, क्योंकि वो गुल है, गुल नहीं है गाफ और गैन में, और ये लफ्ज अनाम नहीं है, इनाम है, इसका भी ख्याल रखा जाए। जवाला राठी ने आकर गौर कहा, ये गैन से है गौर, और उसके अलावा जब आप मिसाल देते हैं कि अंधेरा नहीं उजाला है, तो आप गैर मुल्की मिसालों पर मुकद्दम रखें अपने वतन की मिसालों को, तो गैर मुल्की मिसालें ना दी जाएं तो बेहतर है। फरिया आपने एक लफ्ज़ बोला पेशन गोई, ये पेशीन गोई है। बहरहाल आपके तमाम चीज़ों को देखते हुए रेलेवेंसी भी देखी, प्रोनाउंसिएशन भी देखा। आप मेरे पास 3rd पोजीशन पे मौजूद हैं जवाला राठी। बहुत सारी तालियां जवाला के लिए। और मैं 2nd पोजीशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं 1st पोजीशन बताऊंगा तो 2nd पोजीशन जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। ऐड करती चलूं कि हमारे पास तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए क्यू मोबाइल के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और जो आज हमारे पास विनर होगा उसके पास क्यू मोबाइल का मोबाइल फोन भी जाएगा, उसके साथ जुगन प्रेट जाएगा, और डेनी की जानिब से हज और उम्रा की डिवाइस जाएगी। तो देखते हैं आज हमारे साथ कौन है विनर। बहुत कम मार्जिन था, लेकिन बहर कैफ तलफ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए, कॉन्फिडेंस को देखते हुए ये मुकाबला नाम हुआ है फरीहा। रमजान पाकिस्तान, और जैसे